चलिए सीधा लिए चलते हैं जियो इंडिया 2022 सम्मेलन। हरदीप पुरी बोल रहे हैं। 36 million square kilometers, which is now available for exploration. Approximately 9.1 lakh square kilometers have been opened up for exploration. And when I was in the US till yesterday, we launched the mega offshore bidding round for 2.3 lakh square kilometers on 10th October. India will do more than 500 plus exploration wells in the coming years, and more 2D and 3D seismic surveys will be done than ever before. So, Shri Rao, I want to tell you that the work you started, we are in the process of giving it, fuel and acceleration. And I'm sure that in the coming months, when we see the results, we will also acknowledge the contribution of not only yourself, but all the other petroleum geologists who have joined you in ONGC and in other sectors. Cognizant of the importance of data before undertaking investment decisions, through our national data repository, we have approximately 7 petabytes of geological data which can be shared for the benefit of companies interested in the E&P sector in India. As I said, in this process, the role of the geologists or the geologist community in this initiative cannot be overemphasized. We are launching a scheme for stratigraphic wells where the Government of India will incentivize discoveries of potential basins using the NDR by drilling exploratory wells at its own cost, that is the government's cost. I believe this is a major innovation, and whilst the companies may not need this incentivization, it is a measure of the earnestness and resolve that the Government of India is ready to walk the talk in terms of this exploration. And I want to compliment my colleagues in the ministry, the Secretary, the Director General, Hydrocarbons, and all those who have been working with them. Because these developments, the clearing of the no-go area, the National Data Repository, and this other innovation that I just mentioned are amongst many that have already been unveiled. And I keep repeating, if there is anything that the professional petroleum geologist believes or the companies which are here believe, we are open to ideas. Please provide us inputs. And I think we are willing to do work in a collaborative, interactive, fully understanding manner. And therefore, I think gatherings like this are important. I don't want to spend too much time in terms of what we have done. और अब बात एक ट्वीट की जिसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया है। पूनिया ने ट्वीट में अखबार में प्रकाशित खबर को पोस्ट कर लिखा है कि राजस्थान के इतिहास में इतना असुरक्षित मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा होगा। ये नजारा देखकर तो विनोद भी हैरान है। अपराध कैसे रुकेंगे? मुख्यमंत्री तो बस अपने पोस्टर के लिए परेशान है। सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक ट्वीट एक अखबार में प्रकाशित खबर को उन्होंने पोस्ट किया और उस पोस्ट के आधार पर उन्होंने लिखा कि इतना असुरक्षित मुख्यमंत्री लोगों ने नहीं देखा होगा राजस्थान के इतिहास में। साथ ही उन्होंने तंज भी कसा, कहा कि नज़ारा देखकर तो विनोद भी हैरान है कि अपराध आखिर कैसे रुकेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बस अपने पोस्टर के लिए परेशान है। सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का ये ट्वीट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पीआरओ राजेंद्र कुंपावत जयपुर पहुंचे हैं। आज पीसीसी में चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे। कुंपावत के साथ पीसीसी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को पीसीसी में मतदान होगा। बड़ी खबर जयपुर से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पीआरओ राजेंद्र कुंपावत जयपुर पहुंचे हैं। पीसीसी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। 17 अक्टूबर को पीसीसी में मतदान होगा। कुंपावत के साथ पीसीसी पदाधिकारी भी इस दौरान तैयारियों का जायजा लेने के लिए मौजूद रहेंगे। जयपुर से बड़ी खबर।
बीजेपी के रिमोट वाले बयान पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में खुलकर बोले। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल वाली बात सब झूठ है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये महज पार्टी की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश है। बीजेपी का आरोप है कि जो भी कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट होगा वो गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलेगा, वो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं तो कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होगा। ये देखो, ये सब झूठे हैं। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता है, फलाना होता है, कैंडिडेट जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होता है। ये सब जो लोग इस पार्टी के छवि को खराब करने वाले हैं। और बीजेपी का तो हमेशा ये कहना, उनसे क्या लेना देना है हमारे पार्टी के इलेक्शन से। उनके पार्टी में कुछ इलेक्शन हुए हैं, डेलीगेट्स हैं, इलेक्शन अथॉरिटी है, क्या उसके तहत उनका चला है? सब वो आज तक जितने भी उनके प्रेसिडेंट बने सभी कंसेंसस पे बने हैं। और वैसे लोग हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे हैं। और आज नए सीजेआर का शपथ ग्रहण है। जज पंकज मित्तल आज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस पंकज मित्तल आज राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें शपथ दिलवाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूदगी अपनी दर्ज कराएंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल मूलतः मेरठ के निवासी हैं। 2006 में एडिशनल जज बने थे। 2008 में स्थायी न्यायाधीश बने। इसके बाद जस्टिस पंकज मित्तल 2021 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे। 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 16 जून 2023 तक अब राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। करीब 8 महीने तक राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश अब पंकज मित्तल रहेंगे। और अब बात भरतपुर की, जहां भुसावर थाना क्षेत्र के पथैना गांव में कल देर शाम को पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर गोली चली, लाठी डंडे और फरसे भी चले। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। घायलों को आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां से एक युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोगों का पुलिस अभिरक्षा में आरबीएम अस्पताल में ही इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों में पहले से ही पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसे लेकर दोनों ही पक्ष कल आमने सामने हो गए। फिलहाल भुसावर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फायरिंग और लड़ाई झगड़े की सूचना थी, उस पर अधिकारी क्षेत्र के जो है वो मौके पर गए हैं। यहाँ पर जो भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में 3 जो है डेड बॉडी आई हैं, जिनको मोर्चरी में रखवाया गया। 2 आदमी इंजर्ड है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब होता है। जिस तरीके से राजस्थान में भरतपुर क्राइम के मामले में नंबर बना रहा है, उसी प्रकार से आज भरतपुर जिले में पथैना में 3 लोगों की फायरिंग करके मौत हुई है। और इसमें कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। मैं कहती हूँ भरतपुर में ऐसी ऐसी घटनाएं, आप फायरिंग को ले लीजिए, आप मर्डर को ले लीजिए, आप लूटपाट को ले लीजिए, आप रेप को ले लीजिए, आप छेड़छाड़ी को ले लीजिए, इसमें पुलिस व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसके बावजूद राजनेता उनकी पीठ थपथपा रहे। इसमें उनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान में भरतपुर नंबर 1 पर आ रहा है। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे हैं। भरतपुर के पथैना गांव में हुए गोलीकांड के मामले को लेकर उन्होंने जानकारी ली। अस्पताल पहुंचकर घायल युवक से भी मुलाकात की और ढांढस बंधाया। इस दौरान आईजी गौरव श्रीवास्तव, संभागीय आयुक्त भी मौजूद रहे। कलेक्टर आलोक रंजन सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे। गोलीकांड मामले को लेकर उन्होंने यहां पहुंचकर जानकारी ली, घायल युवक से भी मुलाकात की। आईजी गौरव श्रीवास्तव, संभागीय आयुक्त भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर आलोक रंजन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
खबर टोंक से है, जहां निवाई में मृतक संदीप सिंह के परिजनों ने शव रखकर मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर एडिशनल एसपी भवानी सिंह और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। आखिर प्रशासन की हर संभव मदद और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल निवाई क्षेत्र के झिलाई के रहने वाले उदय सिंह राजावत ने अपने बेटे को नशीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने और लूट करने का मामला दर्ज करवाया। परिजनों ने यहाँ पर थाना अपने निवाई पर 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवाया है और ये भी कहा है कि कुछ पैसे इसके ले लिए। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। पहले सिंगल डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया था, बाद में इनकी इच्छा थी कि मेडिकल बोर्ड से करवाए, तो मेडिकल बोर्ड से जो है पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अनुसंधान निष्पक्ष करेंगे और जो होगा वो खुलासा सामने देंगे। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर हैं। मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। मंडाना क्षेत्र के उप तहसील मंडाना में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मीणा और कोटा लाडपुरा उप प्रधान अशोक के नेतृत्व में उप तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। वहीं किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलवाया जाए, क्योंकि लाडपुरा और मंडाना सहित आसपास के इलाके में तेज बारिश होने से सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। बारिश हुई है जिससे किसानों की फसल लगभग 100% खराब हो चुकी है, लेकिन इनकी उदासीनता देखे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पटवारी की, इनकी कृषि परिषद की, जो अभी तक खेतों में जाके इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है और यहाँ बैठे बैठे टेप कर लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे सर्वे कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान कर रहे हैं लोग। इन्हीं को चुकाने के लिए हम ये गर्मी कंसन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके 2020 से अभी तक कोई क्लेम नहीं मिला। इस साल फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, 100% प्लस फसल नष्ट है। पर इन्होंने एक तो क्रॉप कटिंग का यहाँ पर योजना चलाया, उसका ना किसानों किसी को मालूम नहीं है। क्रॉप कटिंग में जो किसानों को लाभ मिलता है वो बीमा क्लेम में कम मिलता है, जबकि क्रॉप कटिंग में ज़्यादा लाभ मिलता है। अजमेर से खबर, अजमेर में दिखा लंपी का असर। पुष्कर मेले में अब पशुओं की आवक नहीं होगी। विभाग के शासन उप सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। पुष्कर में हर साल कार्तिक माह में पशु मेला लगता है, लेकिन इस बार लंपी के कारण ये पशु मेला निरस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर अजमेर से, पुष्कर मेला निरस्त। लंपी के कारण पुष्कर मेला इस बार नहीं लगेगा, पशु मेला इस बार नहीं लगेगा। पुष्कर मेले में पशुओं की आवक नहीं होगी, पशु मेला नहीं लगेगा। पुष्कर मेले में पशु मेला नहीं लगेगा। विभाग के शासन उप सचिव ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। हर साल कार्तिक माह में पशु मेला लगता है, लेकिन इस बार लंपी के कारण इस पशु मेले को निरस्त कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज दोपहर 3 बजे, जिसमें गुजरात, हिमाचल में तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। बड़ी खबर, आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव।